हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर ऑनलाइन लेक्चर के अंदर जो सैटरडे लिया था मैंने उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। सो अभी मैं वो वापस से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। नाउ लेट अस लर्न फ्रॉम द व्हाट इज रिपीटर कंट्रोल। रिपीटर कंट्रोल भी ऐसा ही कंट्रोल है जो मल्टीपल डेटा को डिस्प्ले करेगा एंड बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है टू डिस्प्ले द रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। यस, अगर आपका आइटम्स बाजू में दिखाना है या वन बाय वन आइटम को दिखाना है कि फॉर एग्जांपल वन रो में 3 आइटम आनी चाहिए, 4 आइटम आनी चाहिए, यस फिक्स नंबर ऑफ आइटम, तो आप रिपीटर कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। रिपीटर कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स that are bound to the control and it's same as a grid view and data grid view. Repeater control is lightweight and faster to display the data. Yes, compare with the data grid view, or we can say grid view control. Yes, both are the same. By using this control we can display data in custom format. Yes, जो grid view के अंदर possible नहीं है. Yes, रिपीटर कंट्रोल जो है लूप थ्रू वर्क करता है। ये सो वी कैन से टेम्पलेट का आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप रिपीटर कंट्रोल का यूज़ करना चाहते हो। सो रिपीटर कंट्रोल टेम्पलेट कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। रिपीटर कंट्रोल प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लेआउट ऑफ द कंट्रोल्स कंटेंट. Template generate markup which determines final layout of content. Yes, template के अंदर final layout हम create कर सकते हैं और वही layout के अंदर data display होगा. Yes, repeater control is an iterative control in the sense it loops each record in the data source. Yes, हर एक data source के अंदर हर एक record को iterate करेगा और we can say one by one access करेगा. Yes, सो रिपीटर कंट्रोल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आइटम टेम्पलेट, यस ये आइटम टेम्पलेट ऐसा टेम्पलेट है जहां पर आप आइटम को डिफाइन करोगे और क्रिएट करोगे। यस, इसके अंदर आप टेबल, रो, कॉलम ये सब कुछ रख सकते हो। अल्टरनेट आइटम टेम्पलेट यानी कि क्या? अल्टरनेट, इट इज सेम यस योर आइटम टेम्पलेट बट अल्टरनेट यानी कि क्या? वन आफ्टर वन। यस, और वन के बाद अगर हम अल्टरनेट बोलेंगे तो सीक्वेंस में नहीं, वन के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, बट वी कैन से अल्टरनेट यानी कि क्या हो जाएगा? ऑड फॉर्मूला हो जाएगा और इवन फॉर्मूला, यानी कि ऑड आइटम्स विल डिस्प्ले लाइक सेम एंड इवन आइटम विल डिस्प्ले लाइक सेम. यस, सो आइटम टेम्पलेट के अंदर आप इवन आइटम को डिस्प्ले कर सकते हो और अल्टरनेट आइटम टेम्पलेट के अंदर आप ऑड आइटम को डिस्प्ले कर सकते हो. यस, ये टेम्पलेट कंपलसरी नहीं है, वी रिक्वायर ओनली द आइटम टेम्पलेट. आइटम टेम्पलेट अगर आप डिफाइन करते हो तो उसके अंदर सारे आइटम डिस्प्ले होते हैं. यस, हेडर टेम्पलेट के अंदर आप हेडर रख सकते हो. यस, सो यू कैन पुट द हेडर text and various format here on the header templates. Same way footer template के अंदर you can put the footer. Yes, display the footer or you can put the footer things like sum, average, separator template के अंदर you can put the separator values. Like we can say if you want to put an horizontal line or vertical line, that you can put inside the separator template. So the data will be differ from the other control. Yes, here we have a use of the repeater control. We can see that here I display the list of data here and we have a separator control here. Yes, and these are the data here. You can write ASPX code like header template you can put the heading of the template. Same way alternate item template you can create the table and put your various data style. Like for binding the data we require less than percentage eval. So eval, what it will do, it will evaluate the data from the database and it will bind with your control. Yes, when it will bind when the particular
data bind event will be called. Same way you can also bind the name column, address column like this. Same way you can also define the item template. Yes, and you can put the same number of content here also, like auto ID, name, address. Yes, so these are the repeater control. Now next one control is the data list control. Data list control we can say is used to define user defined layout. It is basically used to display the data in user defined layout. Yes, however there are many added advantages comparison with the repeater control. One of the main advantage is what data list control is supports directional rendering. Yes, horizontal and vertical. Yes, it has many properties and several events are also available. Yes, now let us see the data list control. Like for example, if I want to display the data like horizontally like this, yes, then you can use the data list control. yes, इसके अंदर मेथड सेम है और मेथड का जो वर्किंग है सेम है. हेडर टेम्पलेट का, फुटर टेम्पलेट का, अल्टरनेट आइटम टेम्पलेट का, आइटम टेम्पलेट का, सेपरेटेड टेम्पलेट का. बट डिफरेंस क्या है डेट यहाँ पर रिपीट डायरेक्शन. वी कैन से रिपीट डायरेक्शन आर द horizontal. You can direct by using the horizontal और vertical. आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है रिपीटर कंट्रोल के अंदर. एंड रिपीट कॉलम्स यानी कि कितने नंबर ऑफ डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर. यस, और रिपीट लेआउट कौन सा रखना है, टेबल. यस, सो ये टेबल फॉर्मेट के अंदर सारे डेटा डिस्प्ले होंगे. सो ये वी कैन से हम सेपरेटर टेम्पलेट के अंदर, सॉरी रिपीटर कंट्रोल के अंदर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन जो है फॉर्म व्यू कंट्रोल. फॉर्म व्यू कंट्रोल बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, जब भी आपको सिंगल फॉर्म लाइक डेटा को डिस्प्ले करवाना है या एडिट करवाना है या ऐड करवाना है या डिलीट करवाना है फॉर्म के जैसा डेटा. यस, यानी कि आपका एक फॉर्म खुलेगा लाइक गूगल प्रोफाइल लाइक और एनी अदर थिंग्स, तो उसके अंदर आप फॉर्म व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हो. उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं वो देखते हैं. एडिट आइटम टेम्पलेट, ये टेम्पलेट थ्रू आप आइटम टेम्पलेट को या फॉर्म व्यू के रिकॉर्ड को आप एडिट कर पाओगे. इंसर्ट आइटम टेम्पलेट यानी कि इंसर्ट जो है हमारा प्रोसीजर, उसके अंदर क्या क्या दिखना चाहिए, कौन सी कॉलम दिखनी चाहिए, कौन सा डेटा दिखना चाहिए, इनपुट लेना चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो. सेम वे आइटम टेम्पलेट के अंदर कौन सा डेटा डिस्प्ले करवाना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो. मेथड्स अवेलेबल है, चेंज मोड, बेसिकली रीड ओनली, इंसर्ट और एडिट, इतने ही चेंज मोड अवेलेबल है. सो आप इतने मोड के अंदर आप अपना फॉर्म को चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट वन जो है इंसर्ट आइटम, यूज टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस. यस, ये टेम्पलेट का, ये मेथड का यूज कब करोगे, टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनसाइड द डेटाबेस. अपडेट आइटम आप कब यूज करोगे, टू अपडेट द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस. डिलीट आइटम का आप यस मेथड का कब यूज करोगे, यूज टू डिलीट द करंट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस. तो उसके लिए आप डिलीट आइटम का यूज कर सकते हो. ये हो गया आपका इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस. ये आपका फॉर्म हो गया. यहाँ पर सबमिट बटन होगा जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट कर पाओगे. ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द फॉर्म व्यू कंट्रोल. यस, ये एक एग्जांपल है. यहाँ पर आप आइटम टेम्पलेट के अंदर सब कुछ डेटा को क्रिएट कर सकते हो. तो ये इंसर्ट डिस्प्ले के टाइम पर डिस्प्ले करेगा और इंसर्ट के टाइम पर इंसर्ट का डेटा डिस्प्ले करेगा. Yes, command name edit, command name new, so it will work like a new. या अगर आप command name को edit करोगे तो वो edit की तरह वर्क करेगा. आपको टेक्स्ट बॉक्स मॉडिफाई करने को देगा और command name डिलीट दोगे तो वहाँ पर डिलीट बटन डिस्प्ले होगा. लास्ट देख लेते हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का साइट मैप पाथ. साइट मैप पाथ बेसिकली क्या है, वी कैन से it is used to navigate the controls or it will provide the map of your website. yes, site map control किसके लिए यूज होता है, to
it will provide the map of your ASP.NET application. For example, अगर आप विजिट कर रहे हो होम के अंदर आपने ओपन किया BCA और BCA के अंदर आपने ओपन किया TY के अंदर 5th सेम, तो ये पूरा पाथ कि आप कहाँ कहाँ पर से पर्टिकुलर आपका वेब पेज ओपन हुआ है, अगर आपको पाथ दिखाना है देन यू कैन यूज द साइट मैप पाथ कंट्रोल. यस, इससे रिलेटेड वेरियस प्रॉपर्टी अवेलेबल है. रूट यानी कि क्या, फर्स्ट आपका जो मेन वेबसाइट है उसका मेन पेज का लिंक यहाँ पर होगा. पेरेंट नोड क्या होता है, वी कैन से नोड जो होम है उसके अंदर BCA, तो BCA क्या हो गया, पेरेंट नोड. अ नोड दैट हैज वन और मोर चाइल्ड बट इज डज नॉट हैव करंट नोड, यानी कि पेरेंट नोड का चाइल्ड हो सकता है लेकिन करंट नोड नहीं हो सकता है. यस, करंट नोड यानी कि क्या, TYBCA. यस, जो हमारा करंट पेज डिस्प्ले हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट नोड. इसके अंदर टेम्पलेट प्रोवाइडेड होता है. वी कैन से करंट नोड स्टाइल, तो आप यहाँ पर करंट नोड का स्टाइल डिफाइन कर सकते हो. नोड स्टाइल के अंदर आप नोड का स्टाइल कर सकते हो. यस, रूट नोड स्टाइल के अंदर आप रूट नोड का स्टाइल डिफाइन कर सकते हो. सेम वे करंट नोड का टेम्पलेट, नोड टेम्पलेट और रूट नोड का टेम्पलेट आप डिफाइन कर सकते हो स्टाइल से रिलेटेड. यस, और उसके साथ में दो इवेंट अवेलेबल है, आइटम क्रिएटेड एंड आइटम डेटा बाउंड. ये दो इवेंट कब अकर होगी, व्हेन कंट्रोल फर्स्ट क्रिएट द साइट मैप नोड आइटम. सो जब फर्स्ट नोड आइटम इंसर्ट होगा तो ये आइटम क्रिएटेड इंसर्ट वी कैन से इवेंट कॉल होगा. एंड आइटम डेटा बाउंड इवेंट कब कॉल होगा, जब हमारा डेटा जो है या नोड जो है बाउंड होगा साइट मैप के साथ, तब जाके ये इवेंट कॉल होगा. यस, थैंक यू सो मच. यहाँ तक आई होप कि इनफ है. सो वी कैन स्टॉप हियर और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कंप्लीट कर देंगे.